اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب و مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آمین۔ شکریہ خداوند، آپ کو برکت دے میرے بھائی۔ آئے میرے عزیزو، آئے ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا متباق پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کواری مریم سے پیدا ہوا، پنطوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، آخر ہوا میں اتر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا کا متباق کے دہنے بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، بدن کی قیامت اور ابدی زندگی پر۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ سبوں کا، بیٹھ جائے گا۔ خدا ان کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کو آج کی صبح میری طرف سے سلام۔ خدا ان کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ آج کرسمس سیزن میں تیسرا اتوار ہے، اور خدا ان کا شکر ہے کہ آج ہم خیریت اور سلامتی سے خدا ان کے گھر میں موجود ہے۔ یہ خدا ان کی شکر گزاری ہے۔ آج کا جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، ہم نے سو کو سنا ہے۔ ہم نے سنا ہے جی، مجھے بتائیں، ہم نے سنا ہے جی؟ پائی میرے میں کے کہو، ہم نے سنا ہے جی۔ ہم نے اس کو سنا ہے جو یسایہ نبی کی کتاب میں یسوع المسیح کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہ پیشن گوئی یسایہ نبی کی کتاب میں یہ دوسری پیشن گوئی ہے۔ پچھلے سنڈے ہم نے یسایہ کی کتاب میں سے مسیح کے بارے میں ایک بات سیکھی، اور وہ کون سی تھی؟ کوئی بھی ایک مجھے بتا سکتا ہے، بچہ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی یسایہ نبی کی کتاب میں سے پیشن گوئی کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا؟ ایک یسی کے تنے سے کمپل نکلے گی۔ شاباش بہن، یسی کے تنے سے کیا نکلے گی؟ ایک کمپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بار بار شاخ پیدا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایک بار بار شاخ پیدا ہوگی۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، اور جو جس آیت کو آج ہم نے پڑھا ہے، یسایہ نبی کی کتاب میں سے، یسایہ کا تعارف میں نے پچھلے اتوار آپ کو کروایا تھا، لیکن تھوڑا سا پھر کرواتا ہوں۔ یسایہ آموز کا بیٹا تھا، جو اس دور کا بادشاہ تھا جب بنی اسرائیل کے لوگ بت پرستی میں بہت ہی آگے جا چکے تھے، اور اس کو نبوت کرنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ لوگ خدا کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جب ایک آدمی خدا کی بات نہ سنے تو کس طرح سے کوئی بات سنا سکتا ہے؟ پر یسایہ نبی نے ایکٹنگ کے ذریعہ سے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پورے بنی اسرائیل میں خدا کا پیغام پہنچایا۔ اور آج
جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں سے یسایہ نبی خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایک پیغام دے رہا، اور وہ پیغام یہ ہے. کیا پیغام ہے؟ اور ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا سلطنت اس کے، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. یہاں پر اور اس کے علاوہ بھی مسیح کے نام بہت سارے درج ہیں. جس طرح آپ اس سے پیچھے اگر آپ پڑھیں 8ویں باب میں تو وہاں پر یسایہ نبی کہتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ امانویل. کیا نام رکھیں گے؟ ملاکی کی کتاب میں ملاکی نبی کہتا ہے کہ یسوع کے بارے میں آفتاب صداقت تالے ہوگا. اسی یسایہ کی کتاب میں ہم نے پچھلے سنڈے پڑھا کہ ایک شاخ پیدا ہوگی. زکریا کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک شاخ پیدا ہوگی. اور بھی بہت سارے نام یسوع کے درج ہیں، پر جہاں جہاں بھی آپ کو یسوع کا نام ملے گا ایک ملے گا. پر یہاں پر یسایہ نبی 5 نام متعارف کرواتا. کتنے نام ہیں؟ 5 نام. کیا پہلا نام؟ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا. کتنے نام ہو گئے؟ پر یسوع کا نام صرف یسوع ہے. کیا ہے؟ امانویل نام نہیں رکھا گیا، شاخ نام نہیں رکھا گیا، آفتاب صداقت نام نہیں رکھا گیا. صرف نام کون سا رکھا گیا؟ یسوع نام رکھا گیا. فرشتے نے کہا کہ تم نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے. پر یہ نام کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ نام مسیح کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں. کیا ظاہر کرتے ہیں؟ مسیح کی صفت کے جو معنی ہیں لغت کے حساب سے وہ ہے وہ لفظ جو کسی شخص یا شے کی ذاتی اور اندرونی خصوصیات کو ظاہر کرے. اب میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ بھائی صفت اس چیز کا نام ہے جو کسی شخص کے ذاتی اور اندرونی چیز کو ظاہر کرے، صرف اس کا نام ہے. یہاں پر مسیح کے صفاتی نام ہے. کتنے نام ہے؟ یعنی وہ چیز جو مسیح کے اندر موجود تھی، وہ صفت جو مسیح کے اندر موجود تھی، یسایہ نبی وہ ظاہر کر رہا ہے. یسایہ نبی یہ نہیں ظاہر کر رہا کہ اس کا جسم کیسا ہوگا، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسے، اس کے بال کیسے ہوں، یہ نہیں ظاہر کر رہا، بلکہ وہ مسیح کی اندرونی صفت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. میرے عزیزوں، مسیح کی صفاتی ناموں میں سے اگر ہم صفت کی اور تھوڑی سی تفصیل کو جان جائیں تو یہ ہے جس طرح آدمی کا نام کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خوبصورت ہو تو اسے خوبصورت بھی کہا جاتا ہے. نام کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کے اندر کی خصوصیات تھوڑی چلاک والی ہو تو آپ کہتے ہیں آپ تو بڑا یار چلاک آدمی ہے، یعنی وہ اندرونی صفت کو نمایاں کر رہا ہے. اگر آدمی کے اندر اگر وہ چھوٹے قد کا ہو، بڑا ہو، لیکن اس کی ہم خصوصیات کو دیکھ کر بات کر لیتے ہیں. اسی طرح مسیح کے اندر جو صفت موجود تھی یسایہ نبی اس کو ظاہر کر رہا ہے. یسایہ نبی کیا کر رہا ہے؟ اس کو ظاہر کر رہا ہے. پہلے نمبر پر وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ عجیب. لفظ صرف عجیب. پہلے نمبر پر وہ کیا کہتا ہے؟ عجیب. عجیب کے کیا معنی ہے؟ عجیب کے معنی ہے انوکھا، حیرت انگیز، عرفہ.
मायने देखे तो लोगों के मानिया सबसे अलग, नायाब, ताजुब, हैरानी। आपका मसीहा जो इस दुनिया में आया वो क्या है? सबसे अलग है। सबसे क्या है? अनोखा है, हैरत अंगेज है, हैरत अंगेज है। क्योंकि बनी इस्राएल में जब मसीहा ने जिस्म लिया तो उसने लोगों को हैरान कर दिया, अजीब काम किए। क्या किए? आप मेरे साथ नहीं है, क्या किया? क्या किया? अजीब काम किया। और अजीब काम क्या थे? मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि अजीब काम क्या थे मसीह के। एक बंदा मसीह के पास आया, वो इबादत खाने का सरदार था, और उसने आकर खुदावंद के सामने कहा, मालिक मेरी बेटी बहुत बीमार है, वो मरने के करीब पहुंच चुकी है, और तू जाकर उसको अगर छू ले तो वो ठीक हो जाएगी। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं। उसी वक्त एक बंदा पीछे से भाग कर आया और उसने कहा कि मालिक को तकलीफ ना दे, क्योंकि तेरी बेटी क्या हो चुकी है? मर चुकी है। और वहां पर लिखा है बाइबल मुकद्दस में, मरकस की अंजील में लिखा है, वहां पर रोना चलाना था, अजीजों खारब आए हुए थे। एक नौजवान बेटी की मौत हो चुकी थी, हर तरफ अफसुर्दगी और कहर था कि किस तरह नौजवान बेटी फौत हो गई है। मेरे अजीजों, हर तरफ एक खौफ था, क्योंकि जहां भी किसी नौजवान इंसान की वफात हो जाती है, एक खौफ सादारी हो जाता है, एक दहशत छा जाती है। और उस इलाके में कुछ इसी तरह से था, और रोना और पीटना था हर तरफ। यीशु ने उन लोगों को ये कहा, क्या कहा? तुम क्यों रो रहे हो? ये कहा, ये बेटी, या क्या कहा? मरकस की अंजील में कहा, मरकस की अंजील 5वें बाब 39वीं आयत में कहा, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं बल्कि। और बाइबल मुकद्दस में आगे पढ़े तो लिखा है, लोग उस पर हंसने लगे। लोग क्या करने लगे? उन्होंने कहा, हम तो कितनी देर से रो रहे हैं, हमने नब्ज चेक की, हमने डॉक्टर को चेक करवाया, उसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, वो मर चुकी है, और तू कहता है वो सो रही है। यीशु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तलीता कुमी। अरामी जुबान का लफ्ज है तलीता कुमी। यीशु ने कहा, जिसका तर्जुमा है, बेटी खड़ी हो जा। और लड़की उठकर बैठ गई, क्योंकि वो अजीब है। वो क्या है? वो अजीब है। वो मरे हुए इंसान को ये कहता है कि ये सो रहा है। ये क्या कर रहा है? क्योंकि उसकी नजर में वो सो रहा है, क्योंकि उसके पास ये कुदरत है, और वो अजीब है। वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, और मरे हुए इंसान को ये कह सकता है कि ये सो रहा है। ये क्या कह रहा है? सो रहा है, क्योंकि वो अजीब है। वो क्या है? अजीब है। हम कह सकते हैं ये मर चुकी है, हम कह सकते हैं ये ठीक नहीं हो सकती, हम कह सकते हैं हुण डॉक्टर ने जवाब दे दिता, हुण पादरी भी कुछ नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं, पर मालिक ये कह नहीं सकता। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। वो दूसरों से क्या है? बिल्कुल अलग है। नबी, पैगंबर, रसूल आए इस दुनिया में, सबने आकर तालीम दी। सबने आकर क्या दी? सबने आकर क्या कहा? सबने कहा, खुदा यूं फरमाता है। यसाया नबी ने जब भी पैगाम दिया, कहा खुदा यूं फरमा रहा है। क्या कर रहा है? खुदा यूं फरमा रहा है। खुदावंद की ये आवाज है, खुदा की तरफ से मेरे पास एक पैगाम है, मैं तुम्हें ये पैगाम देता हूं। लेकिन मेरा मसीहा तमाम नबियों, पैगंबरों, बड़े नबियों अकबर असगर से बड़ा नबी है, और वो तमाम से अलग है। वो ये नहीं कहता कि खुदा की तरफ से ये पैगाम है। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो, लेकिन मैं तुमसे
कहता हूं यीशु ने ये नहीं कहा खुदा की तरफ से ये पैगाम है मेरे पास, खुदा की तरफ से ये इल्हाम है मेरे पास, क्योंकि वो तमाम नबियों से अलग है, इसलिए उसने कहा मैं तुमसे आप मेरे साथ नहीं है, मैं तुमसे कहता हूं क्योंकि वो तमाम नबियों से अलग है। वो तमाम नबियों से क्या है? क्योंकि अजीब का मतलब क्या है? अलग है। अजीब का मतलब क्या है? अलग है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस मसीहा ने जिस्म लिया वो अलग है, वो अजीब है। वो क्या है? अजीब है। दूसरी बात अगर हम गौर करें तो क्या लिखा है? वो क्या है? जिसका नाम मशीन, दूसरा नाम क्या है? अजीब और मशीर। मशीर का मतलब होता है मशवरा देने वाला, मशवरा देने वाला, सलाह देने वाला। बादशाहों ने मशीर रखे होते हैं, वजीर आजम ने मशीर रखे होते हैं कि नहीं? मशीर बादशाहों के पास मशीर होते हैं, मशवरा देने वाले, कि बादशाह सलामत कुछ इस तरह से किया जाए। अगर बादशाह की समझ में बात नहीं आ रही, वो अपने मशीरों से राब्ता करता है कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम मुझे बताओ इसके बारे में। पर मेरा बादशाह भी है, मेरा खुदा बादशाह भी है और वो मशीर भी है। वो क्या है? उसको किसी और मशवरे की जरूरत। इस बात पर आप हालेलुया करेंगे? जोर से करें। उसको किसी मशवरे की जरूरत नहीं पड़ती। वो किसी और मशीर उन्होंने नहीं रखे हुए कि ये मशीर है मेरे पास, ये 4-5 मेरे पास मशीर है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, बल्कि मेरा खुदा काबिल खुदा है और उसे किसी मशवरे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग खुदा से मशवरा लेकर भी उस पर अमल नहीं करते। क्या नहीं करते? उस पर अमल नहीं करते। क्यों? एक बंदा खुदा यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, मालिक मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यीशु ने कहा, हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा, कौन से हुक्म? उसने कहा, खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, अपने माँ बाप का फर्माबरदार बन। उसने कहा, मैं तो ये काम बचपन से करता आ रहा हूं, मुझे किस बात की कमी है? उसने कहा, तुझ में एक बात की कमी है। मशवरा मुझसे कर रहा है, मैं तुझे मशवरा ये देता हूं कि जा अपना माल गरीबों में बांट ले, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। आपने हालेलुया का नारा लगाया, पर उसने नहीं लगाया। उसने क्या किया? बाइबल मुकद्दस में लिखा, वो मायूस होकर चला गया। मायूस होकर क्या हुआ? चला गया। क्यों? क्योंकि उसके दिल के मुताबिक, उसकी जिंदगी के मुताबिक मशवरा नहीं था। आज हम खुदा से मशवरा चाहते हैं, मालिक मुझे बरकत दे, मालिक मेरे घर से बीमारी को दूर कर, मालिक मुझे बढ़ा, मालिक हमारे ऊपर से कर्जा उतार दे, मालिक हमें ये कर दे, हमें वो कर दे। पर मालिक क्या कहता है? मालिक कहता है, मेरे पास आ, गुनाह को छोड़ दे। हम मायूस हो जाते हैं क्योंकि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। उसके पास मशवरा बेहतरीन है, वो मशवरे में माहिर है, कोई भी उसे मशवरा नहीं दे सकता, बल्कि वो सबको मशवरा देता है। और क्या आवाज बुलंद यीशु ने कहा, ऐ थके मनोबोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। ये उसके पास मशवरा दिया उसने दुनिया में, पर हम इस मशवरे पर अमल नहीं करते। हम इस मशवरे पर अमल नहीं करते। मेरे अजीजों, यीशु मसीह पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को लेकर पहाड़ पर चला गया, और वहां पर जाकर यीशु की सूरत बदल गई। एलिया और मूसा यीशु से मिलने के लिए आसमान से नीचे आए। पतरस देखकर हैरान रह गए, हुई यार क्या माजरा।
जब वो चले गए आसमान पर तो पतरस कहने लगा खुदावंद इतने रहना साढ़े बात बड़ा बेहतरीन है, हम 3 खैमे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। बादल ने फिर से नीचे उतरा बादल, और आसमान से बादलों में से ये आवाज आई, इसे मशवरा न दो, इसे मशवरा ना दो। क्या लिखा है? ये मेरा प्यारा बेटा इसकी क्या करो? सुनो, क्योंकि ये मशवरे में माहिर है, इसे मशवरा ना दो। मेरे अजीजों, हम कभी भी खुदा को मशवरा नहीं दे सकते। और मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको ये बताऊं, जब कोई उसके मशवरे पर अमल कर लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसकी जिंदगी क्या हो जाती है? वो मसूल पर बैठे हुए इंसान एक ऐसा काम जिसमें आप बदनाम हो चुके हैं, जिसमें आपको लोग सलाम करना पसंद नहीं करते, आपका माशरा यहूदी लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते, आपके घर में आना पसंद नहीं करते। मैं मत्ती रसूल की बात करने लगा। वो रूमी लोगों के लिए मसूल लेता था, और रूमी लोगों के लिए काम करना यहूदियों के लिए बहुत एक बुरा काम था। अब उसने यीशु के मशवरे पर अमल कर लिया। क्या लिखा है? जब वो मसूल की चुंगी पर बैठे हुए हिसाब किताब कर रहा था, लोगों से मसूल ले रहा था, यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जा। यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे आ जाओ। उसने मशवरे पर अमल कर लिया। आज रहती दुनिया तक मत्ती रसूल का नाम है। मेरे अजीजों, जो कोई उसके मशवरे पर अमल कर लेता है उसका रहती दुनिया तक नाम है। आज हम उसके मशवरे पर अमल नहीं कर रहे। यीशु ने पतरस की कश्ती पर बैठकर कहा, पतरस जाल डाल। उसने कहा, नहीं मालिक, मैंने रात भर मेहनत किया है, इस जीवन में कुछ नहीं है। उसने कहा, मैंने तुझे कहा जाल डाल। आज ये मौजज़ा कभी भी लिखा ना जाता अगर पतरस यीशु की बात न मानता। पतरस ने यीशु की बात मानी, पतरस की जिंदगी बदल गई, और उसने देखा कि ये कौन सी शख्सियत है जिसने मेरे सामने खड़ा है। हमने तो रात भर चप्पा चप्पा झील का छान मारा है, हमारे हाथ तो कुछ नहीं आया, सिर्फ इसने कहा है तो जाल फट रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी अगर आप यीशु के मशवरे पर अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि वो क्या है? मशीन है। वो क्या है? आप आवाज़ें बुलंद नहीं कह रहे। वो क्या है? मशीन है। वो मशवरा देने में माहिर है। वो मशवरा देने में क्या है? माहिर है। तीसरी बात जो कर रहे हैं वो ये है कि वो खुदाए कादिर है। वो क्या है? खुदाए कादिर है। कादिर का मतलब होता है कुदरत रखने वाला। क्या रखने वाला? इख्तियार रखने वाला। कुदरत के जो मायने हैं वो है खुदाई ताकत। क्या है? जिसके पास खुदाई ताकत हो। तो यीशु का नाम क्या है? खुदाए कादिर। क्या है? खुदाए कादिर, जिसके पास खुदाई ताकत हो। यीशु ने जितने भी मोजज़े किए कह कर किए। कैसे कहा? हो जा, और वो हो गया। एक मोजज़ा ऐसे किया कि दुनिया हैरान हो गई। दुनिया ने कहा कि सिर्फ इसके कहने से मोजज़े नहीं है, सिर्फ इसके बोलने से मोजज़े नहीं है, सिर्फ ये जबान को हलाता है तो मोजज़े नहीं होते, कोई इसे छू ही ले तो मोजज़ा हो जाता है। जो इसे कोई छू ही ले तो मोजज़ा हो जाता है। और मेरे मसीहा ने भीड़ में से रुक कर कहा, मुझे किसी ने छू लिया। मरकज की अंजील में वहां पर लिखा, इतनी भीड़ थी कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। अब लोग गिर रहे हैं। यीशु रुक गया और कहा, यहां पर किसी ने मुझे छुआ। पतरस क्या लगा, मालिक के तेरे ऊपर लोग डेग दे रहे हैं, तू कहीं ना मुझे छुआ। उन्होंने कहा, ना, मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि कुदरत मुझसे
कुदरत मुझसे क्या हुई है? खुदाई कुदरत ने काम किया है मुझ से। ये नहीं है कि मैं चल रहा हूं और कोई शिफा ना पाए और मुझे मालूम ना हो। यीशु ने कहा मुझसे कुदरत निकली है। लोगों ने कहा भाई ये तो की हो गया, ऐसे लोग डेग देने पे एक कहना मुझे किसी ने छुआ है। उस औरत ने डरते हुए पास आकर कहा मालिक मैंने तुझे छुआ है, मुझे 12 बरस से खून जारी था और मैं इसी वक्त शिफा पा गई। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह खुदाई कुदरत रखता है। क्या रखता है? खुदाई कुदरत रखता है। और ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारा मसीहा खुदाई कुदरत रखता है। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो अबदियत का बाप है। वो क्या है? अबदियत का कोई भी ये अल्फाज नहीं कह सकता, ना कोई नबी, बड़े से बड़ा नबी भी क्यों ना हो। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, वो जमीन का इख्तियार कहते होंगे यहाँ पर मेरा इख्तियार है, किसी ने कहा कि ये काम है, लेकिन मेरे खुदा ने कहा बाप उसकी चीज को कहा जाता है जो मुकम्मल इख्तियार रखता है। मेरे मसीहा ने जमीन का भी इख्तियार है और आसमान का भी। यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, क्योंकि वो अबदियत का क्या है? बाप है। अब आपको कोई जन्नत में ले जाने के लिए, आपको कोई हमेशा की जिंदगी में ले जाने के लिए किसी के आगे सिफारिश नहीं कर सकता। मालिक क्या भैया बंदा मेरा है, इन्हों जानते कोई नहीं, इसको जो उस पर ईमान ले वो कहेगा तूने मुझ पर ईमान लिया, तू जनती है। तू क्या है? जनती है, क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी का क्या है? आप मुझे बात में बोले, वो हमेशा की जिंदगी का क्या है? वो हमेशा का मालिक है। अबदियत का मतलब होता है हमेशा की। और आखिरी बात करने लगा हूं वो ये है कि वो सलामती का क्या है? शहजादा है। वो जंगो जदल नहीं चाहता, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? वो जमीन पर इसलिए आया ताकि सुलह करा सके, क्योंकि वो सलामती का क्या है? शहजादा। हमारी बाप के साथ लड़ाई थी, लेकिन उसने जमीन पर आकर हमारे और बाप के दरमियान में जो दीवार थी उसको गिराकर सलामती का शहजादा बना और हमारी और बाप के साथ क्या करा दी? सुलह करा दी, क्योंकि वो सलामती का क्या है? शहजादा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात, ये नाम यशायाह नबी ने इसलिए लिखे क्योंकि वो मसीह की अंदरूनी सफात को जाहिर कर रहा था, और आज हमारे सामने उसकी सफात शामिल। आज हम यीशु के मशवरे पर अमल कर रहे हैं या नहीं? आज हम यीशु जो मशीह है, जो अजीब है, जो खुदाए कादर है, जो अबदियत का बाप है, जो सलामती का शहजादा है, इस बेटी को पकड़िएगा, जो सलामती का शहजादा है, क्या हम उसके साथ चल रहे हैं या नहीं? मेरे भाई, मेरी बहनों, हमें आज अपनी जिंदगियों पर सोचना चाहिए। हमारे मशवरे किसके साथ हैं? हमारे मशवरे अबलीस के साथ होंगे तो वो हमें एक दिन गड्ढे में ले जाएगा। अगर हमारे मशवरे किसी और के साथ है वो एक दिन हमें गड्ढे में ले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मशवरा खुदाए कादिर के सामने है, उसके सामने खुदावंद मुझे मशवरा दे, मेरी जिंदगी में ये मुश्किलातें हैं, मेरी जिंदगी में ये परेशानियां हैं, मेरी जिंदगी में ये बीमारी है, तू मुझे मशवरा दे, और वो हमें अच्छा मशवरा देगा। वो हमें तो क्या देगा? अच्छा मशवरा देगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदा से मशवरा लीजिएगा, क्योंकि वो मशीन है। वो क्या है? मशीन है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया खुदावंद आपको बरकत दे। आए मेरे अजीजों, हम अपने सिर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएंगे। आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है आसिफ लाल से कि वो दुआ करने में हमारी रहनुमाई करें। आसिफ लाल। इस घड़ी इस मौका के लिए जो तूने बख्शा मेरे तेरे खुदा